channel 2. With these channels, we can observe the input voltage as well as output voltage. Yellow color shows channel 1 and blue color shows channel 2. Yes. Here we can see the frequency and peak to peak voltage. Yes. To observe the applied voltage waveform, we have to connect channel 1 of DSO across the RLC circuit. Red probes shows positive terminal and black probes shows negative terminal. This is the waveform which shows peak to peak value, that is 14.6 volt. Because we are applying 5 volt voltage from the variac whose values is in RMS. Yes. This is variac, that is auto transformer, from which we are giving supply to the loads. This is R load, that is variable R load. Here we can change different resistance in ohms and kilo ohms. Similarly, there are variable inductive loads in millihenry and henry and variable capacitive load in microfarad. With the help of these loads, we can change different values of inductance and capacitance. With multimeter, we are getting voltage in RMS, and with DSO, we are getting voltage in peak to peak. Yes. This is RLC series circuit where R, L, C are connected in series. Therefore, we will connect load in series. R is connected in series with L is connected in series with C. We are supplying voltage with the help of variac across this RLC connection. Multimeter connected across a variac is reading 5.01 volt RMS value. 10 volt. Load connected have values L 1000 millihenry, capacitance 3 microfarad, resistance. वैल्यूज नोट कर लीजिए। एल की वैल्यू है आपकी 1000 मिली हेनरी, सी की वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड, आर की वैल्यू है 10 किलो ओम, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है। ये सब वैल्यूज फिक्स रहेंगी। 10 kilo ohm, frequency 50 hertz. You can calculate reactance and impedance with these values. For observation, practically obtain values of current, voltage and power are. V is applied voltage, that is 5.04 volts, measured with help of multimeter. We have connected, for measuring current, we have connected ammeter in series with circuit. One terminal of ammeter is connected with the main supply and second terminal with R load in series. Current in series is 0.48 millihenry. Now we measure individual voltage across R, L and C with the multimeter. To measure voltage across R, connect multimeter across R load and take reading, that is 5.0 volt. Similarly, connect multimeter across inductor as well as capacitor and take voltage reading. Voltage across R is VR 4.95 volt. Voltage across inductor, that is VL, is 0.014. Voltage across capacitor is VC, that is 0.524.
These are the voltage when we are supplying 5.0 volt, 4 volt with the help of variac. Also, we can calculate power from P equals to VI cos phi. For calculating this power, first we have to calculate power factor, that is cos phi. You can calculate it from cos phi equal to R by Z. We are having R and Z values. From here, multiply voltage, applied voltage and supply current with power factor, you will get total power. And also we can calculate current and individual voltage while applying supply voltage as 10 volt and 15 volt. We can measure current 0.99 and for 15 volt current is 1.5. For these supply voltage 10 and 15 volt, we can take individual voltages. According to that, you can calculate the power consumed by the loads. This is a lab manual. I have shared this lab manual in ERP. I'm audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So, what the experiment is, you have to measure the voltage, current, power and power factor of a series RLC circuit. As far as I know, इतना experiment clear नहीं था जितना हम आप explain किया है. सिंपली आपको ये समझा देती हूँ. आपके पास R, L और C ये तीन elements लिए गए हैं और वहां पर एक वेरिएक है, वेरिएबल जो कि वेरिएबल एसी सप्लाई प्रोवाइड करता है. ठीक है. जो एसी सप्लाई होती है, जैसे कि मैंने समझाया है, वेरी कर सकती है. तो हम वहाँ पे वेरिएक एक ऐसा डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम अपनी एसी सप्लाई को 0 से लेकर 230 वोल्ट के बीच में वैरी करके कोई भी सप्लाई लगा सकते हैं. ठीक. अब आपको क्या करना है, पावर मेजर करना है. तो पावर मेजर करने के लिए हमें एक वॉटमीटर की जरूरत होती है. तो वॉटमीटर यूज किया, सीरीज में लगाया. हमें करंट मेजर करना है तो करंट मेजर करने के लिए एमीटर यूज किया, सीरीज में लगाया. और आर के क्रॉस वोल्टेज कितना है, एल के क्रॉस वोल्टेज कितना है, सी के क्रॉस वोल्टेज कितना है, ये हमें कैलकुलेट, ये हमें मेजर करना है. जिसके लिए हमें वोल्टमीटर्स लगाया. तो आपने एक वॉटमीटर यूज किया है पावर को मेजर करने के लिए, एमीटर यूज किया है करंट को मेजर करने के लिए, वोल्टेजेस को यूज, वोल्टमीटर्स को यूज किया है वोल्टेजेस मेजर करने के लिए. और सबके लिए आप मल्टीमीटर्स यूज करते हो. यहाँ पर एक ऑसिलोस्कोप दिखाया गया है. वो ऑसिलोस्कोप बेसिकली सिर्फ ये बता रहा है कि आपकी जो एसी सप्लाई है वो जो सप्लाई है वो एसी है कि नहीं. ठीक है. तो वहां से आप एक्सपेरिमेंट में जब आप देखे होंगे वीडियो में तो देखा होगा आपको ऑसिलोस्कोप में सिर्फ ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है सिस्टम की. फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अपन ने ली है और सप्लाई वोल्टेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. अब एज यू ऑल नो कि अगर आपके पास, जैसे आपने वैल्यूज नोट डाउन करी होगी, आपके पास L कितना मिली हेनरी है, C कितना है और R कितना है. आई थिंक सो R 1000 ओम्स है, C 3 माइक्रोफैराड है और L 1000 मिली हेनरी है. 1000 मिली हेनरी है ना. तो और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है. ये सारी चीजें आपने लिख ली है. Now you know the formula how to convert this L into XL, C into XC. तो ये आपको कैलकुलेशन करना रहेगा. यहाँ पर XL और XC को कैलकुलेट करना रहेगा. उसके बाद आप Z कैलकुलेट करोगे. Z कैसे निकलता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए. तो रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर से हम क्या निकालते हैं, Z की वैल्यू निकालते हैं. ठीक. मैं रीडिंग्स फिर से शेयर करूंगी, अभी वीडियो वापस से चालू करूंगी. क्या कर रहे हैं वो अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ.
आपको ये प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड वैल्यूज को फिल करना है। आपने कुछ एक वोल्टेज दिया, उसके रिस्पेक्ट में आपको करंट मिलेगी और इंडिविजुअल आर पर, एल पर और सी पर कितना वोल्टेजेस है ये हमने मेजर किया है। तो यहाँ बी से लेकर इस बी आई, बी आर, बी एल और बी सी ये सब की वैल्यूज आपको प्रैक्टिकली मिलेंगी। पावर को आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना रहेगा। पावर का फॉर्मूला, हम सिंगल फेज एसी सर्किट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो सिंगल फेज एसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला होता है VI cos phi। आपके पास ये वोल्टेज है, आपके पास ये करंट है। cos phi के लिए एज यू नो द फॉर्मूला, cos phi होता है क्या, R by Z। ये होता है ना cos phi का फॉर्मूला R by Z। तो पूरे सर्किट के लिए, क्योंकि सर्किट में R की वैल्यू, L की वैल्यू और C की वैल्यू आप बार-बार चेंज नहीं कर रहे हो, फिक्स रखे हो, तो पावर फैक्टर पूरे सीरीज RLC सर्किट के लिए क्या आएगा, फिक्स आएगा। तो उसकी वैल्यू आप इनिशियली कैलकुलेट करके यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करके लिख देंगे, Z के बाद कॉमा करके cos phi R by Z और R आपने जो क्वेश्चन में आपने एक्सपेरिमेंट जो नोट डाउन किया है 1000 ओम्स। L और C की वैल्यूज के हेल्प से आप XL और XC निकालेंगे और Z निकालेंगे, तो उस Z को डिवाइड कर देंगे तो पावर फैक्टर आ जाएगा। उसी पावर फैक्टर की वैल्यू को आपको यहाँ पावर के कैलकुलेशन के लिए यूज करना, ठीक। वोल्टेज और करंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये आपका प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड वैल्यूज का टेबल कंप्लीट होगा। अब इसके बाद आपको ये कैलकुलेशन करना है थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड वैल्यूज का। यहाँ पर एक कॉलम मिसिंग है, वो है L का। आप यहाँ पर एक कॉलम और ऐड करेंगे यहाँ पर लास्ट में, जहाँ पर आपके पास R और C की ये सभी वैल्यूज फिक्स्ड आएंगी, XC की वैल्यू भी फिक्स रहेगी और Z की वैल्यू भी आपकी फिक्स रहेगी। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, वोल्टेजेस चेंज हो रहे हैं। तो हमको ये चेक करना है कि अगर हम थ्योरेटिकली इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, थ्योरेटिकली अगर मुझे करंट निकालना होता है तो I के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V by Z होता है। तो Z मेरा फिक्स रहेगा जो आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक। आपका सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो उस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर करंट्स थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके देखना है कि गिवन R, L और C की वैल्यूज के लिए आपका यहाँ पर करंट्स कितना आ रहा है फॉर दी अप्लाइड वोल्टेज V। ऐसे ही आपको थ्योरेटिकली वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ठीक। ये थ्योरेटिकली वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होगा, ये थ्योरेटिकली वोल्टेज कैलकुलेट होगा यहाँ से। आपको पहले थ्योरेटिकली R, XL और XC की वैल्यूज मिल जाएंगी। उन वैल्यूज को आपके पास जो भी करंट आएगा, तो हर एक वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पर प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड वैल्यूज में करंट है, तो उस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग आप करंट को यूज करेंगे और VR कैलकुलेट करेंगे। VR कैसे कैलकुलेट करेंगे, I into R करके। तो हर एक वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग आपको करंट मिलेगी, उस करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो VR, BL और BC की वैल्यूज इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलती जाएगी। हर एक वोल्टेज के लिए आपके पास VR, BL और BC की वैल्यूज अलग अलग आएंगी और ये जो कॉलम्स आप फिल करेंगे ये कैलकुलेशन करके फिल करेंगे। यही सेम कॉलम आपको प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड वैल्यूज में भी मिलेगा, बट यहाँ से आप रीडिंग्स नोट डाउन करें। तो यहाँ पर रीडिंग्स नोट डाउन किए बट यहाँ पर कैलकुलेशन करना रहेगा। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, आप अगर प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे तो मेंशन कर दीजिएगा। VR की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर I into R होगी। और जैसा मैंने आपको समझाया, यहाँ पर आपको एक कॉलम ऐड करना है L का और उस L से आप एक और दो कॉलम्स ऐड करोगे। जैसे यहाँ पे C और XC का दो कॉलम है, वैसे ही L और XL का दो कॉलम्स यहाँ पर ऐड होना चाहिए, तो वो ऐड होगा यहाँ पर। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, VR, BL और BC की वैल्यूज की हेल्प से इस फॉर्मूले को यूज करके आपको थ्योरेटिकली टोटल वोल्टेज कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। वो अप्रोक्सीमेटली जो आपने वोल्टेज प्रैक्टिकली लिया है, जो आप यहाँ पर फिल आउट करेंगे उसके बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट कैलकुलेशन आपको करना है पावर फैक्टर का।
इसके लिए सिर्फ एक ही रो फिल होगी क्योंकि R की वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड है, L और C की वैल्यू फिक्स्ड है, तो ZR भी एक ही निकलेगा, Z भी एक ही निकलेगा, जिसके कारण पावर फैक्टर भी एक ही निकलेगा। उस पावर फैक्टर की वैल्यू को देखकर आपको उसका नेचर बताना है कि वो लीडिंग पावर फैक्टर होगा या लैगिंग पावर फैक्टर होगा। We know that in a series RLC circuit, अगर XL XC से बड़ा है, XL XC से बड़ा है, तो ओवरऑल जो पावर फैक्टर आता है वो लैगिंग पावर फैक्टर आता है। और अगर XC XL से बड़ा है, तो ओवरऑल जो पावर फैक्टर आएगा वो कौन सा पावर फैक्टर आएगा? लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है। नाउ लास्ट इज थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड वैल्यूज। पावर फैक्टर तो आपका फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू, वोल्टेजेस की वैल्यूज आपने नोट करी है, उसके करस्पॉन्डिंग आपने करंट्स निकाला हुआ है। यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, वोल्टेज और करंट्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? प्रैक्टिकल ऑब्टेन्ड के टेबल से मिलेगी। बस उन वैल्यूज को लेना है और पावर को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है। सॉरी आप करंट की वैल्यू यहाँ से लोगे, थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ करंट को लोगे। ये थ्योरेटिकली करंट की वैल्यूज हमने निकाली है, तो ये जो थ्योरेटिकली करंट की वैल्यूज निकाली है उसको यहाँ पर लिखना। और वोल्टेज की वैल्यू तो हर बार प्रैक्टिकली लेनी है, हर कॉलम में, हर एक टेबल पर। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली वोल्टेज की वैल्यू आएगी, यहाँ पर थ्योरेटिकली वोल्टेज की करंट की वैल्यू आएगी, और ये थ्योरेटिकली पावर फैक्टर रहेगा। तो जो पावर निकल कर आएगा वो थ्योरेटिकल पावर आपका निकल कर आएगा। एनी डाउट्स रिगार्डिंग द कैलकुलेशन? तो मैं रीडिंग शो करूंगी। कैलकुलेशन में कोई डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ आया हो किसी को? सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yeah. Yes, note down the readings. हम स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। हाँ। स्क्रीन दिख रही है? Yes. Yes, ma'am. रीडिंग नोट डाउन कर लीजिए। लेट मी नो व्हेन यू फिनिश द रीडिंग्स। जब आप रीडिंग्स लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा।
मैम मैम हाँ सुरोज, डन मैम। ओके, सबका कंप्लीट हो गया? Yes. अच्छा, हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। ऊपर एल सी और आर की वैल्यूज और एक्स की वैल्यूज भी लिखी है ना, नोट कर लीजिएगा अगर नोट नहीं करे होंगे तो। आर एल सी की वैल्यूज भी लिखी हुई है ऊपर में। डन नाउ? Yes, ma'am. चलिए, ये हमारा सीरीज आरएलसी एक्सपेरिमेंट थर्ड एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। मैंने 2 एक्सपेरिमेंट्स के मैनुअल्स आपको शेयर किए हैं ईआरपी में, तो आज हम सेकंड एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, दैट इज फ्यूजेस का। ठीक, तो उसका स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. चलिए, पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट समझ लीजिए, फिर एक्सपेरिमेंट बनाएंगे। हमें बेसिकली एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 नहीं है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या करना है, हमें स्टडी करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस की, और हमें डिटरमाइन करना है रेटिंग कि जो फ्यूज हमने यूज किया है उसकी क्या रेटिंग है। तो सबसे पहले फ्यूज क्या होता है ये समझिएगा। फ्यूज इज बेसिकली अ प्रोटेक्टर, एक सेफ्टी डिवाइस है जो हम अपने घरों में क्या बोलते हैं, अपने अप्लायंसेस को डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। फ्यूजेस का मतलब आप सभी जानते हैं। तो फ्यूज क्या है, बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हम अपने कहीं पर भी, जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, वहां पर हाई क्या बोलते हैं, डैमेज से किसी भी अप्लायंस को बचाने के लिए हम फ्यूजेस का यूज करते हैं। अब ये फ्यूज बेसिकली होता क्या है, जो फ्यूज होता है वो एक थिन स्ट्रिप होती है, यू कैन से अ स्ट्रैंड ऑफ अ मेटल, जो जिससे जब हेवी करंट पास होगी उसके पर्टिकुलर हर एक जो स्ट्रिप होती है मेटल की, जो फ्यूज तार होती है, उसका अपना एक क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी होती है करंट को कैरी करने। ठीक है, तो जब उससे उस करंट की कैपेबिलिटी से एक्सेसिव करंट फ्लो करती है तो सिंपली वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल की भाषा में फ्यूज को एक सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है। सर्किट ब्रेकर इज अ डिफरेंट थिंग एंड फ्यूज इज अ डिफरेंट थिंग, बट फ्यूज कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ सर्किट ब्रेकर, क्योंकि वो जिस भी सर्किट में लगता है, अगर उस सर्किट में, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज जिस भी सर्किट में लगता है, अगर उस सर्किट में एक्सेसिव करंट फ्लो करती है, उसकी रेटिंग से ज्यादा करंट अगर फ्लो करती है, तो वो फ्यूज क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और सर्किट को प्रोटेक्ट कर देता है। जो मेरे लोड है उसको एक्सेसिव वोल्टेज या एक्सेसिव करंट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेजिंग। अब ये जो स्ट्रिप होती है, जो हम फ्यूज की तार, जो फ्यूज तार होती है, वो तार बेसिकली किससे बनती है, ये तार या तो एल्यूमिनियम से बन सकती है, या कॉपर से, या जिंक मटेरियल से बनती है। और जो फ्यूज होती है वो हमेशा जो भी सर्किट होती है उससे सीरीज में ही कनेक्टेड होती है। क्लियर? तो फ्यूज हमेशा किस में कनेक्टेड होती है, सीरीज से ही हमारे सर्किट से जुड़ी होती है, और जब भी ओवर करंट सर्किट में फ्लो करता है, उस ओवर करंट से सर्किट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो नीड क्या है फ्यूज का,
वेरी सिंपल, हमें अगर अपने किसी भी डिवाइस को प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम फ्यूज को यूज करते हैं जहां पर हेवी करंट फ्लो कर सकती है, जहां पे डैमेजेस के खतरे ज्यादा होते हैं। सिंपल आप ये कह सकते हो, जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर आप फ्यूजेस का यूज कर रहे हो, चाहे वो आपकी घर क्या बोलते मोटर बाइक्स की बैटरी भी क्यों ना हो, वहां पर भी आप ऑटो स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑटो स्टार्ट कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं वायरिंग गई और करंट जा रही है, तो उस मोटर व्हीकल्स में भी हमारे फ्यूजेस रहते हैं। जहां हो, जहां एसी का यूज हो चाहे डीसी का यूज हो, कोई भी सर्किट्स हो जहां पर आपने बैटरी लगा ली या जहां पर इलेक्ट्रिकल का यूज कर रहे हो, करंट अगर फ्लो कर रही है, मतलब आपको वहां पर एक फ्यूज लगाना ही पड़ेगा टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर डिवाइस। सिर्फ जैसा मैंने समझा दिया है फ्यूज कैसे वर्क करता है। फ्यूज वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट से। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हीटिंग इफेक्ट है। हर एक फ्यूज जो थिन फ्यूज तार होती है उनका अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि उनकी करंट कैरिंग कैपेबिलिटी रहती है उनके रेटिंग्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये रेटिंग्स आप डिसाइड करते हो, ये रेटिंग्स आप डिसाइड करते हो। आप मतलब जब आप किसी चीज का, जब आपके घरों में वायरिंग्स होती है, जब नया घर बनता है, हम पूरा इलेक्ट्रिकल का सेटअप करते हैं, तो आप देखे होंगे सिरेमिक्स के फ्यूजेस लगे होते हैं, है ना। ये फ्यूजेस की रेटिंग्स कैसे डिसाइड होती है कि आपके घरों में सप्लाई कितना आ रहा है, उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं अपन फ्यूज का रेटिंग लगाते हैं। क्योंकि इन जनरल हमारे घरों में जो स्टैंडर्ड सप्लाई आती है या तो वो 220 वोल्ट्स आती है या तो 440 वोल्ट्स आती है, ठीक है। तो ये जो 220 वोल्ट्स और 440 वोल्ट्स है, इनके अकॉर्डिंग ही फ्यूज तार मार्केट में मिलती है। और इसी फ्यूज तार को आप अपने घर में जब आप फ्यूज तार खरीदने जाते हो तो वो कुछ नहीं बोलते, बस क्या बोलते हो, भैया एक फ्यूज तार की स्ट्रिप दे देना। तो वो जब फ्यूज तार की जो स्ट्रिप देता है, उस स्ट्रिप गोल रिंग में बंधी होती है वो, बस आप उस स्ट्रिप को लाते हो और जहां जब भी आपका फ्यूज घरों में फ्यूज तार उड़ जाता है, बस वहां पर उस तार को डिस्कनेक्ट करके वापस से गोल घुमाकर एक तार को बांध देते हो, ठीक। तो फ्यूज कैसे काम करता है? जब भी एक्सेसिव करंट फ्लो होने लगती है एक पर्टिकुलर रेटिंग से, तो फ्यूज तार क्या एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो रीच होता है, और जब उससे ज्यादा करंट उसमें फ्लो करने लगेगी तो सिंटर से ब्रेक हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा और हमारी सर्किट को डैमेज से बचा देगा। यही बेसिकली फ्यूज का काम होता है, ठीक है। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पर मेंशन है, टाइम मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा। तो बेसिकली फ्यूज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। जो फ्यूज तार होती है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जैसे टिन और लेड का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वैसे ही फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो फ्यूज याद रखिए कभी भी एक मेटल से मिलकर नहीं बनता, ठीक है ना। उसकी हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब वो ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट को मतलब एक पर्टिकुलर रेटिंग वोल्टेज और करंट को कैरी कर सके। ऐसा ही नहीं किया क्या बोलते थोड़ा सा भी ओवर वोल्टेज होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। ऐसे तो मेरे घर में बार बार ट्रिप होता रहेगा। एक सडन अमाउंट, सडन एक्सेसिव, अचानक से अगर बहुत ज्यादा करंट आ गया और वो करंट अगर फ्लो होगा उस फ्यूज से, तो वो फ्यूज तार ब्रेक हो जाएगी। तो उसके लिए उसको हाई कंडक्टिव होना चाहिए। फ्री फ्रॉम डिटोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी जो फ्यूज तार होती है उसको ध्यान से अगर देखेंगे तो कभी भी जंग नहीं लगती है। घर पे जाना, अभी तो सिस्टम चेंज हो गया है, एमसीबी आ गए हैं, वो ट्रिप हो जाता है, सिंपली स्विच की तरह बिहेव करता है, ट्रिप हो जाता है, बस हम उसको जाते हैं और ऑन कर देते हैं। बट जो पहले जमानों में फ्यूज तार यूज हुआ करते थे, वो फ्यूज तार में अभी भी बहुत से घरों में वो है। तो वो फ्यूज तार्स अगर आप देखेंगे तो उन फ्यूज वायर्स में तो ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, मतलब उनको ऐसा बनाया जाता है कि उनमें जंग नहीं लगना चाहिए। ऑल्सो लो कॉस्ट होना चाहिए, ठीक, क्योंकि कितना बार बार घरों में फ्यूज होगा, अगर वो महंगा होगा तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा फ्यूज को बार बार चेंज करना। नेक्स्ट, अब आपके जो फ्यूजेस होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं दो टाइप से, एसी फ्यूजेस एंड डीसी फ्यूजेस। अब क्या बोलते मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर आप डीसी भी यूज कर रहे हो, बैटरी भी यूज कर रहे हो, तो भी आपको एक फ्यूज लगाना है।
और एसी यूज करते ही हैं हम अपने घरों में, तो हम फ्यूज तो लगाते ही लगाते हैं। अब ये जो एसी फ्यूजेस है ये अगेन दो टाइप से क्लासिफाइड है, लो वोल्टेज फ्यूजेस एंड हाई वोल्टेज फ्यूजेस। लो वोल्टेज फ्यूजेस जहां पर लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर ये लो वोल्टेज फ्यूजेस का यूज किया जाता है, और जहां पर हाई वोल्टेज होते हैं, हाई वोल्टेज कहां पर आते हैं, आपके ट्रांसमिशन टावर्स में, आपके घरों के पास जो पोल्स लगा है वहां पर भी फ्यूजेस लगे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी वायर्स है, तो भैया उन वायर्स की भी अपनी एक कैपेबिलिटी है करंट को कैरी करने की, तो उन वायर्स में भी अगर जरूरत से ज्यादा करंट फ्लो कर गया तो देखना कई बार पोल में क्या बोलते हैं सडनली ब्रेक होने की आवाज आती है कि आग लगने की, क्या बोलते हैं आग लग जाती है बोलते हैं, या सडनली वहां पे से चिंगारी उठती है, तो ये चिंगारी आग क्या होता है, जब कोई तार टूटती है, फ्यूज तार टूटती है तो वो दो टर्मिनल्स के बीच में जुड़ी होती है। आप इसको इस तरीके से समझिए, जस्ट वेट, मैं एक पेन खोल रही थी। बोर्ड विजिबल है ना? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नहीं दिख रहा है कुछ भी? No, ma'am. No, ma'am. अब दिख रहा है? विजिबल है? ये मैम वो जो स्क्रीन शेयर कर रहे थे बस वही है। क्या बोल रहे हैं? बोर्ड अभी भी विजिबल नहीं है मैम। बोर्ड नहीं, जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ वो विजिबल है ना, उसी में लिखूंगी। यस मैम, स्क्रीन विजिबल है। आर्किंग समझा रही हूँ सिंपल, बस 2 मिनट का काम है, समझ लीजिए आर्किंग क्या होती है बेसिकली। देखिए ऐसे ना प्लेट्स लगी होती है, ठीक है, और यहाँ पर आप ऐसे 2 पॉइंट्स होते हैं और इनमें फ्यूज तार को बांधते हैं, ठीक है, ऐसे 2 नॉब्स में। तो क्या होता है, इन प्लेट्स के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस बहुत कम रहेगा तो जब ये फ्यूज तार टूटती है तो टूटने से इसके बीच में एक आर्किंग प्रोड्यूस होता है, एक चिंगारी जैसी निकलती है, ठीक है। तो वो चिंगारी अगर ये जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं ये अगर एक बहुत पास होंगी एक दूसरे से, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये अगर बहुत पास होंगे एक दूसरे से तो ये आर्किंग प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे आग लगने की खतरा हो सकता है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनमें इंफ्यूज तार को इसके बीच में बांधा जाता है, इन इलेक्ट्रोड्स को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पर रखा जाता है ताकि ये फ्यूज तार के ये जो तार है इसके टूटने से जो आग निकलती है वो आग बहुत ज्यादा ना हो। आग मतलब क्या होता है, चिंगारी तो होती है ना, तो वो चिंगारी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम आप कुछ लिख रहे हैं क्या वो स्क्रीन शेयर पे, क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नो मैम। अरे यार, एनीवेज जो बोली वो समझ आया। इमेजिन करो 2 प्लेट्स है, ठीक है, उन 2 प्लेट्स के मैं यहाँ पे समझा दूंगी, ठीक है। चलो फिलहाल क्योंकि अब वो काम नहीं कर रहा है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, टाइम वेस्ट होगा, हमको छोड़ते हैं। तो अभी स्क्रीन शेयर दिख रही है ना? तो जैसा मैं आपको समझा रही थी कि लो वोल्टेज फ्यूजेस होते हैं और हाई वोल्टेज फ्यूजेस होती है। जो लो वोल्टेज फ्यूजेस होती है डिपेंडिंग जहां पर वोल्टेज की, जैसे हमारे घरों में स्पेशली लो वोल्टेज फ्यूजेस का यूज किया जाता है, कमर्शियल पर्पस पे लो वोल्टेज फ्यूजेस का यूज किया जाता है। हाई वोल्टेज फ्यूजेस का जो पोल्स होती हैं, हाई टेंशन टावर्स होती है, वहां पर इन हाई वोल्टेज फ्यूजेस का बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा फ्यूजेस के बारे में, उनके डायग्राम्स बने हुए हैं, कितने टाइप्स के फ्यूजेस होते हैं। अब आते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंट पे। ये हमारा एक्सपेरिमेंट का सेटअप है।
हमने सिंपली क्या लिया है, एक एसी सप्लाई ली है, उस एसी सप्लाई को एक फ्यूज से कनेक्ट किया है। जो फ्यूज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये किटकैट फ्यूज है, जो मैं आपको समझा रही थी, सिरेमिक टाइप का होता है। दिखाऊंगी, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं। ये दिख रहा है? यस मैम, देखिए। हाँ, रिवायरेबल किटकैट टाइप फ्यूज लिखा हुआ है। इसी टाइप के फ्यूजेस आपके घरों में यूज होते हैं। हमारे घरों में पहले ऐसे ही तरीके के फ्यूजेस यूज हुआ करते थे, जिसमें अंदर खोलने से ये सिरेमिक है बाहर का, और अंदर में देखना 2 ऐसी प्लेट लगी होती है। उन प्लेट्स के बीच में ही आप क्या करते हो, तार को बांधते हो। कभी किसी ने किया है क्या अपने फादर के साथ मिलकर? ये तो बहुत एक्साइटिंग होता है। किया है किसी ने? यस मैम, किया। यस मैम। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। तो बस वही है, यहाँ पर हम उसी को ही समझ रहे हैं। तो ये किटकैट फ्यूज टाइप हम अपने एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर हेलोजन बल्ब्स लिए हैं एज अ लोड, और ये स्विचेस है। हम एक एक करके हेलोजन बल्ब्स को लगाएंगे और इस फ्यूज पे क्या बोलते हैं, लोड को बढ़ाएंगे। पहले कम लोड से शुरू करेंगे और फिर ज्यादा की तरफ जाएंगे। ठीक, तो पहले एक हेलोजन बल्ब को एक स्विच ऑन करके चालू किया, फिर दूसरे को चालू किया, फिर तीसरे को, और फिर चौथे को, और इसी तरीके से हर एक हेलोजन कितना करंट ले रहा है ये भी हम मेजर करेंगे। क्लियर, समझ आ गया? तो अब एक्सपेरिमेंट शेयर कर रही हूँ, समझिएगा, उसके बाद आगे एक्सप्लेनेशन दूंगी। अब ये टैब दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। एक्सपेरिमेंट का Now, our aim is testing of maximum current rating of given fuse wire. With the help of this experiment, student will learn to determine the current rating of given fuse wire. For this experiment, apparatus required are ammeter, fuse wire, KitKat switch of 32 ampere and 500 watt halogen bulb with on-off switch. The most common protection scheme used in domestic and industrial applications are HRC fuse wire. Depending upon the diameter of fuse wire, the current rating of wire also varies. In HRC fuse wire is mainly made of tin and tungsten alloy. This material shows a special property when current is allowed to pass through it. The current or wire get heated becomes red when continuously overcurrent is allowed to pass through it, and the fuse wire get broken into two parts from the center of wire, hence disconnected the circuit safely whenever overcurrent is passed through it. The wire remains intact if any current below its rated capacity is allowed to pass through it and get broken when current greater than rated capacity is made to flow through it. Now, remove the outer cover of the KitKat switch and fix the fuse wire whose current rating is to be determined in the slot provided in KitKat. Connect. ये देखिए, जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी वो यही है, ये 2 प्लेट्स होती है ना, तो ये 2 प्लेट्स का एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा पास भी नहीं और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं। और यहाँ पर एक फ्यूज तार लगी हुई है, ये मोटी सी अगर आपको दिख रही होगी तो, है ना। ये किटकैट स्विच क्या बोलते हैं, फ्यूज है जो हमने यहाँ पर यूज किया है। ये एमीटर है जिससे हम इस फ्यूज वायर की रेटिंग पता कर रहे हैं कि भैया ये फ्यूज वायर कितना अमाउंट ऑफ करंट तक ब्रेक नहीं होगी और उसके बाद ब्रेक हो जाएगी। ये हम इस एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं, जिसके लिए हमने लोड्स को धीरे धीरे इंक्रीज किया है। हेलोजन ट्यूब्स, हेलोजन बल्ब यहाँ पर लोड लिया है, पहले एक हेलोजन बल्ब यूज किया है और ऐसे करके हम 4 हेलोजन बल्ब यूज कर रहे हैं 500 वॉट के। Ammeter to measure the current in the circuit. Switch on
the supply, and on this halogen, with help of this switch one by one, the current drawn by a single 500 watt halogen bulb, approximately 2 ampere, when connected across 230 volt 50 hertz single phase supply. After switching on halogen bulb, wait for 1 minute and observe the heating pattern of fuse wire under test. If the wire appear normal, then add one more halogen bulb in the circuit using switch. So we start second switch and again observe the heating pattern of fuse wire for 1 minute and simultaneously keep and watching the ammeter reading. Now we put another lamp load. This is the current value by 3 halogen lamp, and this wire get red hot due to देखो higher load. देखिए वो रेड हॉट हो गया है, वायर दिख रहा है क्या? After we put fourth halogen lamp, the दिखा? फ्यूज उड़ गया। जैसे ही आपने उसकी रेटिंग इंक्रीज करी, वो उससे ब्रेक हो गया, मैच होकर। ठीक, so this is how your fuse works simply. fuse wire get burned and disconnected from supply. The moment connected fuse wire becomes red hot and breaks from the middle or center. Note that the reading carefully, and it is therefore concluded that current reading of given fuse wire just below the final ammeter reading. Now we start all lamp load and observe the ammeter reading, which shows 8 ampere. That means the fuse wire put in this KitKat slot is more than or approximately 8 ampere. If rating of this fuse wire is less than 8 ampere, then due to this lamp load, the fuse wire get red hot and short circuited or blown. So with the help of this procedure and experiment, the maximum current rating of fuse wire is determined, which is approximately 8 ampere, and we conclude the maximum current rating of the given fuse wire हाँ, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था मेरा, कॉलेज का कनेक्शन चला गया था। कहाँ तक देख लिया था पूरा कि कुछ बच गया था? कहाँ पे बचा है मुझे पता ही नहीं है, कनेक्शन लॉस्ट हुआ था। मैम लास्ट 1 मिनट। लास्ट मिनट में तो पूरा देख लिया है ना, फिर समझ गए हैं? यस मैम। तो ये एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे समझ रहे थे। तो ये एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम है और आपको ऑब्जर्वेशन टेबल पे सिंपली ये लिखना है। क्या क्या लिखना रहेगा? आपको हर एक हेलोजन बल्ब की कितना वॉट आप दे रहे हैं? 500 वॉट्स। जब आप पहला 500 वॉट लगाए तो 2 एम्पियर करंट शो किया, सेकंड में 4 एम्पियर एंड लास्ट फाइनल करंट रेटिंग ऑफ आवर फ्यूज वायर इज 8 एम्पियर व्हिच वी आर टेस्टिंग। तो हम इस तरीके से अपने फ्यूज वायर की टेस्टिंग कर रहे हैं। रीडिंग नोट डाउन करिए, देन विल वाइंड अप द क्लास। साइमल्टेनियसली अटेंडेंस भी बोलते हुए जाएंगे।
Roll number 1, 2, Yes, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, Present, 5, ma'am. Present, ma'am. 6, 7, Present, ma'am. 8, 9, 10, 10. Amit Gupta, 11, Present, ma'am. 12, Present, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, Present, ma'am. 15, 15 present, ma'am. 16, 17, 18, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, 4, 5, Present, ma'am. 26, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, 9, Present, ma'am. 30, 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, 5, Present, ma'am. 6, 7, 37 present, ma'am. 38, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 40, Present, ma'am. 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, 5, 6, 45 present, ma'am. 45 presented, 46 p, ma'am. 45 Sanamdeep, Yes, ma'am. 45 present. 47, 48, 48 present, ma'am. 49, Present, ma'am. 50, Present, ma'am. 51, Present, ma'am. 2, 3, 4, 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. Present, ma'am. 57. 9, 58 present. 58 presented, 59, 60, Present, ma'am. 61, 62. Present, ma'am. Thank you, class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.